Hello, everybody. Good afternoon. You guys know the drill. Could you please confirm? Is my audio clear? The screen visible, legible, and it is not still. Somebody please quickly. Okay, thank you. Okay. You were given an assignment last weekend. Many of you submitted. Some of you did not submit for various reasons. How did it feel, people? जिन लोगों ने किया या ट्राई किया एटलीस्ट, could you give me a one liner? How did it go? One liner would be the best. One word would be rather better. What was the feeling? Okay. टफ था, बहुत ही आसान था, कंफ्यूजिंग था. Guys, somebody's attendee name is like family name. Please correct it. I believe it is you, Yogesh. Sakshi, your audio is not connected. कर रहा हूँ उसको कनेक्ट. दूसरा सिस्टम यूज किया सर मैंने. Okay, Yogesh, please correct it. In the middle of difficult and tricky. Okay, tricky. Nothing in particular, Rashi. I just wanted to know that what did you feel about the assignment? Your assignment, Rashi, that was the interesting one. I'll tell you just in a while. जिन लोगों ने नहीं किया है, guys, understand this. This is for your own good. You may have n number of reasons to not to do it. And many a times I'm not, I'm not kind of pointing at you. You may be having a very genuine and very drastic reason not to submit this, but at the same time, please understand this. This is for you people only. Only if you start solving these kind of problems, you will learn these things. Okay. Let's see. I'm going to run a solution. Let's see what you did, how you did, and could there have been done something else? And okay.
So Bollywood exercise, I need to import that reader, and since I want to keep it in my code itself, I will type the code rather than going to import facility. अजमल, सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग हों ये दिमाग से बाहर निकाल दो कि तुम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हारे लिए ये दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, या ये तुम्हारे लिए ट्रिकी रहेगा या तुम्हें टफ लगेगा। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा है, अभी देख लेंगे। डोंट हैंडीकैप योरसेल्फ बाय थिंकिंग दीज काइंड ऑफ थॉट्स। The worst case of technical background is me. You know who I am by education? I am mechanical engineer. हाँ जी, सच बता रहा हूँ। I am a mechanical engineer, and most of my career I have been associated with companies who manufacture heavy machinery. TAFE, L&T, Caterpillar. और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए चूज नहीं किया था क्योंकि मेरा रैंक खराब था। रैंक मेरा बहुत अच्छा था। आई चोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिकॉज मुझे कोडिंग से डर लगता था। उस टाइम मेरे को ऐसा रहता था कि मेरे को बस ये लैपटॉप और ये कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना है, बाकी मैं जो मर्जी कर लूँगा। मिट्टी के तेल से नहा सकता हूँ मैं, तो मैकेनिकल ले लिया। एंड नाउ सी द लक, डेस्टिनी ब्रॉट मी ऑन टू द पाथ। पहले कोडिंग सीखा और सिखा भी रहा हूँ। So don't think it like that. That can be a genuine thing, that if it is going faster and you have that, so don't blame it on your technical background or non-technical background. It has nothing to do with. That has something to do with me. I can change my pace as and when required. Okay, getting back. रीड अंडरस्कोर CSV, कुछ लोगों ने रीड डॉट CSV से रीड किया था, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क पड़ेगा तो बता भी दूंगा। We import the data set. रीड आर का जो रीड अंडरस्कोर CSV है, इसके साथ एक अच्छी बात और है, जो आप स्ट्रक्चर चेक करते हो STR करके, वो ये साथ के साथ दिखा भी देता है। तो स्ट्रक्चर अलग से चेक करने का जरूरत नहीं है, रीड करते ही उसने सबसे पहले स्ट्रक्चर ही दिखाया है। कौन सा करेक्टर है, कौन सा डबल है? डबल मीन्स नंबर। ओके ठीक है, ठीक है। आई ट्राई टू कोप अप। ओके, व्यू कर सकते हैं डेटा सेट, एंड हियर कम्स द फर्स्ट लेसन। जो मैं ग्रुप पे देख रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था। आई डिड नॉट वांट टू इंटरवेन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो सबमिट भी कर दिया। आपको डेटा समझ आता है? ये डेटा किस बारे में बात कर रहा है? इज इट सो? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ये डेटा किस बारे में बात करता है। व्हाट इज दिस होल इंफॉर्मेशन अबाउट? तो किस चीज़ का डेटा है ये? इट इज़ अ डेटा सेट ऑफ सम मूवीज which were released in year 2016. So we have movie name, we have the lead actor name, our date. What is our date?
Mm-hmm. Yep, as straight as that. It is release date. Okay. Then there are column O collection, W collection, FW collection, T collection. What are they? What do they mean? What is O collection? Overseas, opening, weekday. Hmm. You see, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले तो डेटा ही समझना चाहिए। तुमने एनालिसिस कर डाला, डेटा का आइडिया नहीं है कि डेटा कौन है, विच एनिमल यू आर डीलिंग विद। O stands for opening day collection, not overseas। पहले दिन कितना कलेक्शन हो। W stands for weekly, weekend, finally, yes, Weekly connection. not weekday। W is weekend collection। मूवीज कब रिलीज होती है इंडिया में? इंडिया में क्या, इट इज इनफैक्ट it is prominent in Hollywood also across the globe। Movies are usually released on Friday, so that yes, very next day is weekend, Saturday and Sunday, and so that they can grab maximum collection, so it is weekend collection। तो F collection क्या हुआ? First week collection. F collection is first week collection, कि पहले ही वीक में कितना कलेक्ट कर पाया मूवी। एंड फाइनली देयर इज T collection। व्हाट्स दैट? Total collection. ये तो सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द टोटल कलेक्शन, how much money movie made, maybe they are in crores of rupees। Finally there is something called verdict। what is that? Whether the movie was super hit, flop, or average movie. कैसे डिसाइड किया ये? The basis of collection. With the help of ratings and collection as both. मे बी उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा होगा कि समझ रहे हो, 100 करोड़ से कम कलेक्शन है तो उसको एवरेज बोलेंगे, 100 से ज़्यादा है तो मे बी हिट है, एंड ऑन दैट काइंड ऑफ। अरे वो जो राजीव मसन जैसे लोग बताते हैं, खाली बैठे जीवन में कुछ नहीं किया उन्होंने। आई थिंक ये टोटल, आई थिंक ये टोटल जो है कलेक्शन होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जितना रेवेन्यू हुआ है, सो व्हाट इज द डिफरेंस, उस बेसिस पे होगा कुछ। नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये लोग कभी देखते नहीं है। Sakshi, still problem? Sakshi, can you download the app, GoToMeeting app from the website? It is showing that you are connected to audio. Can you remove the headphone if you are using? It happens sometimes with Bluetooth headsets.
ओके, तो ऐसा कुछ डेटा हमारे पास है एंड वी विल सी व्हाट नेक्स्ट टू डू. वन गुड आइडिया, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक द स्ट्रक्चर. हालांकि पहले ही देख लिया है, तो स्ट्रक्चर आप देखना जानते हो, STR, राइट. एंड इट टेल्स यू कि कौन सा कॉलम किस चीज़ में है. मूवी का नाम कैरेक्टर है, होना भी चाहिए. एक्टर का नाम कैरेक्टर है, होना भी चाहिए. रिलीज डेट, इट इज कैरेक्टर. वाई? गॉट इट. यस. रिमेंबर, अगर मिक्स एंड मैच हुआ, कुछ नंबर हुए, कुछ अल्फाबेट्स हुए, तो एवरीथिंग विल गो टू प्रेफर्ड डेटा टाइप. और हाईएस्ट प्रेफर्ड डेटा टाइप वो क्या होती है? इट इज कैरेक्टर. दैट इज व्हाई इट हैज गॉन टू कैरेक्टर. कलेक्शंस, ओके, दीज आर नंबर्स और न्यूमेरिक फॉर्म में ही है, अच्छी बात है. तो ऑल थिंग्स गुड हेयर. आगे चलते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन? एक्सेस द लास्ट 10 मूवी नेम्स. लास्ट 10 मूवी नेम्स. रिमेंबर, उसने क्या बोला है? यू डोंट हैव टू सॉर्ट इट. जस्ट इस डेटा सेट में जो लास्ट में 10 मूवी नेम्स हैं, लेट्स एक्सेस देम यूजिंग बॉलीवुड डॉलर मूवी. So you people have done it in several ways. The easiest one is to take Bollywood dollar movie and number is equal to 10. 10 चाहिए तो 10. बाय डिफॉल्ट करूंगा तो 6 आते हैं. If I print this, so these are the 10 movie names which are at the bottom of this data frame. Question 2. Find out the total number of missing values in Bollywood data frame. हाँ जी, मिसिंग वैल्यूज कैसे निकालते हैं? मिसिंग वैल्यूज Is dot n. ओके. इस डॉट एन करता हूँ इन बॉलीवुड डेटा सेट. तो ये क्या बताएगा? ये बॉलीवुड डेटा सेट के हर सेल पे जाएगा और वहां पर चेक करेगा कि वो मिसिंग है कि नहीं, और मेरे लिए ले आएगा दुनिया भर के ट्रू और फॉल्स. क्या मेरे को ट्रू और फॉल्स चाहिए? मेरे को उसने बोला है टोटल No, नंबर, we have to sum it up. राइट. तो ये हमने पहले भी देखा था. इफ आई सम दिस ट्रू और फॉल्स, तो इट विल गिव मी काउंट ऑफ ट्रूज. तो पता चल जाएगा मिसिंग वैल्यूज कितने हैं. If I try to print this, I see there are 3 missing values. चलो, अभी ये नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन फिलहाल काम हो गया. आंसर तो आ गया कि इस डेटा फ्रेम में there are 3 missing values. Then there comes right the command oblique commands to find out which movie tops the list in terms of total collection. क्या बोला है? उस मूवी का नाम बताओ जिसका टोटल कलेक्शन मैक्सिमम है. राशि, इट इज बिकॉज मैंने बॉलीवुड मूवी का टेल निकाला है. यू हैव यूज द टेल ऑफ एंटायर डेटा सेट. डेटा सेट का टेल निकालोगे तो लास्ट की 10 रोज दिखाएगा पूरी की पूरी. मैंने सिर्फ मूवी नेम बोला है, वही बोला था क्वेश्चन में. ओके, वी वांट टू फाइंड आउट टॉप मूवी इन टर्म्स ऑफ टोटल कलेक्शन. हाँ जी, समझ आ रहा है? ये जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने किया, उन लोगों सबने मोस्टली एक बढ़िया काम किया. मेरे को देखना है मैक्सिमम ऑफ टोटल कलेक्शन. बॉलीवुड डॉलर की कलेक्शन मैक्सिमम कितना है? इतना है. लेकिन मुझे ये नहीं देखना कि टोटल कलेक्शन कितना है. मुझे क्या चाहता हूँ?
मुझे वो मूवी देखनी है जिसका ये कलेक्शन है, उस मूवी का नाम चाहिए। तो क्या हेल्प कर सकता है मेरी यहाँ पे? रिमेंबर विच फैमिली? मैं कह रहा हूँ विच मैक्स। तो विच मैक्स क्या करता है, जहां पर ये मैक्सिमम होगा वो इंडेक्स निकाल के ले आएगा, वो वाला रो नंबर। तो देखो रो नंबर तो पता चल गया, ये कौन सी मूवी का है। अच्छा, पहली रो में लिखी हुई है। अब कहीं भी लिखी हो, मेरे को मैनुअली चेक नहीं करना, बिकॉज दैट इज नॉट एनालिसिस इफ आई एम डूइंग इट मैनुअली। लेकिन काम हो चला मेरा। क्या बोला है उन्होंने? टॉप मूवी, मूवी का नाम। तो देखो मैंने कहा बॉलीवुड डॉलर मूवी। अच्छा, ये कई तरह से हो सकता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड, ये इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसे। बॉलीवुड स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने कहा कौन सी रो, रो नंबर तो बताएगा विच, और कॉलम मैं बताता हूँ। कॉलम कौन सा चाहिए? मूवी नेम। अब मूवी नेम के कई तरीके हैं, या तो मैं देख के ले आऊँ कि ये मूवी नेम कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो आई कैन डू इट लाइक दिस। जस्ट टू शो यू दिखा रहा हूँ। आई कैन राइट कॉलम नेम लाइक दिस, तो मूवी का नाम निकाल देगा। आई कैन टाइप इन द कॉलम नेम इटसेल्फ, कॉलम का नाम क्या है एग्जैक्टली मेरे को वैसे ही लिखना होगा जैसे वो लिखा हुआ है वहाँ पर। तो मेरे को नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है कौन सा कॉलम है ये। एंड सेम रिजल्ट। However, I would prefer and I would advise you to follow this, that rather than यहाँ कॉलम नेम मेंशन कर करके निकालो, मैं यही ना मेंशन कर दूँ, बिकॉज यहाँ पे डॉलर फैसिलिटी मिलता है मेरे को। समझ रहे हो प्रेरित? इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, इट इज करेक्ट जो आप कर रहे हो, बट इट विल फेच एंटायर रो फॉर दिस मूवी। तो इन्फॉर्मेशन एनीवे आ गया, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सिर्फ मूवी नेम निकालना हो तो कैसे निकालें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऑल आर करेक्ट, तरीके तीनों ठीक हैं। हाउएवर आई फाइंड इट more used by data scientists across and आसान, आप लोगों को भी प्रैक्टिस में आ जाओगे तो यही आसान लगेगा। चलो कुल मिला के टॉप मूवी तो पता चली। टॉप मूवी कौन सी आएगी? दंगल। ओके, और शायद ऐसा ही था, दंगल वॉज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी इन इट्स ईयर। तो शायद ठीक ही कह रहा है डेटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई खास तकलीफ हुई नहीं होगी, यहाँ तक तो आ गए होंगे आप लोग थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज write the command to find out which movie comes second in list when it comes to total collection। यहीं पे जिन लोगों के सबमिशन आया है उपद्रव मचा दिया है तुम लोगों ने। अरे कुछ तो भी चल रहा है, अपनी क्वेरी रन करके तो देखी होगी, तो मुझे क्यों भेज रहे हो? इससे अच्छा तो ब्लैंक छोड़ देते अगर नहीं हो पा रहा, एक कमेंट लिख के कि नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आया लॉजिक। ये सिर्फ एक से सॉल्व हुआ है, दो से इनफैक्ट। वन इज राशि एंड वन इज प्रशस्ति। कुडोज वुमन पावर। ओके ओके,
चलो, गुड टू सी। कैसे कैसे कर सकते हो? वन इज एक्चुअली ऑलमोस्ट यही तरीका राशि का भी था। हाँ जी, बाकी लोग देखो, पहले राशि का तरीका दिखाता हूँ। राशि से कोड नहीं बना तो उसने लगाया स्ट्रीट स्मार्ट वाला दिमाग, एंड सेम इज ऑलमोस्ट ट्रिक प्लेड बाय प्रेरित। इन्होंने क्या कहा कि बॉलीवुड डेटा सेट में जिसका मैक्सिमम कलेक्शन था वो वाली रो निकाल दो। समझ रहे हो? देख रहे हो कितने स्मार्ट है ये दोनों? इन्होंने कहा डेटा सेट में से जो सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली रो थी वो रो निकाल दो। अब जो बचा उसमें जिसका सबसे मैक्सिमम होगा वही पेरेंट डेटा सेट में नंबर 2 वाली रही होगी। बड़ी अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा बॉलीवुड डेटा सेट से माइनस विच रो जहां पर बॉलीवुड की कलेक्शन मैक्स है, और ऐसा करके एक डेटा सेट बना दिया टॉप 2। और टॉप 2 में क्या कह रहे हैं कि टॉप 2 जो डेटा सेट बना है उसमें से मूवी नेम निकाल लो कौन सा जो इस टॉप 2 डेटा सेट में टी कलेक्शन मैक्सिमम है जिसका। And देखें तो मैक्सिमम सेकंड नंबर पे टोटल कलेक्शन सुल्तान का आ रहा है इनके हिसाब से। समझ गए बाकी लोग? बेहतरीन। कौन कह रहा ट्रिकी था? तरीके से खेलना था थोड़ा सा। ये थी बॉलीवुड डेटा सेट में क्वेश्चन ने बोला कि जो मूवी सेकंड है, किसी का टोटल कलेक्शन सबसे ज्यादा होगा। ये कह रहा है जिसका सेकंड नंबर पे है टोटल कलेक्शन उस मूवी का नाम निकालो। तो इन स्मार्ट लोगों ने क्या किया कि बॉलीवुड डेटा सेट में जिसका मैक्सिमम था, सेकंड नंबर वाली चाहिए थी ना, तो बजाय उसमें के कुछ लॉजिक लगाएं और दिमाग लगाएंगे, इन्होंने कहा जिसका मैक्सिमम है उसे गायब कर देते हैं, उसे छोड़ के बाकी डेटा टॉप 2 पे सेव कर दिया इन्होंने। तो अब ये जो टॉप 2 डेटा बचा है ये वाला, इसमें जो मैक्सिमम कलेक्शन वाली मूवी थी वो तो निकल गई। अब जो मैक्सिमम कलेक्शन वाली होगी वही तो पेरेंट डेटा सेट जो बॉलीवुड ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें सेकंड नंबर पे रही होगी। काम हो गया इनका। However, however, really, really nice trick, but can you do it the right way? Can you do it the right way? अभी मैंने टॉप 2 पूछी थी तो तुमने क्या करा, पहली रो निकाल के एक डेटा बनाया, उस डेटा में चले गए। अगर मैं कहता टॉप 10th चाहिए फिर, अरे फिर शाम तक यही करेंगे क्या? विच मैक्स निकाली, एक नया डेटा बनाया, फिर नए डेटा से फिर विच मैक्स निकाली, फिर नया चले, फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं। हाँ, फिर यही होता है ना। तो कैन यू थिंक ऑफ अ प्रॉपर लॉजिक? प्रशस्ति, बेटा फायर, जरा कोड भेजना अपना। प्रशस्ति ने कैसे किया है? प्रशस्ति implied a complex logic of sort function. Here it comes. Thank you. ये कोड देखने में भी बड़ा भारी भरकम लग रहा है। मैं समझाता हूँ अभी इसका ब्रेकअप, ये कैसे कैसे काम कर रहा है। थिंक अबाउट इट। अगर बॉलीवुड डेटा सेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, सॉर्ट बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन, है ना? समझ रहे हो? टोटल कलेक्शन के ऑर्डर में सॉर्ट हो गया ये।
डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चाहिए मेरे को, ये भी कंडीशन थी। तो क्या होगा इससे, टोटल कलेक्शन जो था इस डेटा सेट में, जो वेक्टर था टोटल कलेक्शन, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया होगा। यस और नो? हाईएस्ट कलेक्शन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, राइट? हाँ, अरे सुन तो ले, इससे टोटल कलेक्शन निकला है, मूवी कहाँ पता चली? टोटल कलेक्शन ही तो निकला, तुमने सेकंड हाईएस्ट टोटल कलेक्शन बताया, वो मूवी कौन सी है, वो कहाँ पता चली? वो बता रहा हूँ। यहाँ से दूसरे नंबर पे पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है, सेकंड हाईएस्ट वही तो है। तो इतना काम तो सरिता का भी हुआ। सेकंड हाईएस्ट पे टोटल कलेक्शन कितना होता है? इतना होता है। आओ आगे चलते हैं। मैं क्या कहता हूं, विच, रिमेंबर विच फंक्शन क्या कराता है? विच फंक्शन को एक कंडीशन बताओ और जहां पर वो ट्रू होती है वो उस वाली का रो नंबर बता देता है। तो मैं अब क्या कह रहा हूं, देखो क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बॉलीवुड डेटा सेट के टोटल कलेक्शन कॉलम में जहां भी ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, किसके इक्वल? जो सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर के सेकंड इंडेक्स पे है, उस वैल्यू के इक्वल हो जाए। मुझे उस वैल्यू से मतलब नहीं है, ये तो कोड ले आएगा अपने आप, मैंने तो कोड लिखा है। तो विच बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन, और जहां पर ये इस वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए वो वाला इंडेक्स बता दो। उसने बता दिया इंडेक्स। हाँ जी, अब आसान है, अब आसान है, अभी तक दिमाग लगाना था। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो बॉलीवुड डॉलर मूवी नेम इंडेक्स पे, कौन से इंडेक्स पे? उसी पे। जस्ट फॉर रीडेबिलिटी मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट कैन बी इन वन सिंगल लाइन। हेलो। अजमल, टी कलेक्शन की जगह मूवी कर दोगे तो ये मूवी वेक्टर को सॉर्ट कर देगा ना, मूवी नेम्स को सॉर्ट करेगा, फिर टोटल कलेक्शन को थोड़ी करेगा। हमने विच के बाद जो बॉलीवुड डॉलर की कलेक्शन लगाया ना, वहां से करते थे जो पहला वाला बॉलीवुड जो आई एम ड्रॉपिंग दिस कोड इन द चैट बॉक्स, यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ, ट्वीक इट आउट, करके देख लो ना। एक तो वॉइस काफी मीक आ रहा है तुम्हारा अजमल, तो मैं समझ भी नहीं पाया हूँ ठीक से क्या कह रहा हूँ, बट वोंट वर्क दैट वे। ओके सर, समझ गया। क्योंकि शॉर्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे सकते ऐसा। तो आप उससे मतलब ये इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम विच प्रशस्ति डिड, बट आई बिलीव प्रशस्ति ऐसा ही कुछ दिमाग लगा रही थी, यही सोच के किया है। हाँ। सो फैंटास्टिक, लॉजिक वाज इन प्लेस। आई ड्रॉप दिस,
अच्छा, ये पूरा कोड भेज दूंगा, अभी पूरा तो कर दूं, पहले दिखा दूं आप लोगों को। फॉर दिस पर्टिकुलर वन ये अभी अभी ड्रॉप किया है। इति, हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लॉजिक, लेकिन समझ के देखो। मैंने क्या बोला, मेरे को पहले एक वैल्यू निकालनी है कि ये सेकंड नंबर पे टोटल कलेक्शन है कितना। स्टेप्स में समझो, थिंक अबाउट इट। अगर मैं इतना लंबा कोड नहीं लिखता, लेकिन मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं मैनुअली भी तो लिख सकता था इसको। मैं देखो क्या कह रहा हूँ मैं, देखो और सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन, यानी जहाँ पर टोटल कलेक्शन इतना हो, वो वाला इंडेक्स नंबर निकाल दो, तो विच फैमिली विच फंक्शन वही निकाल देगा। ये बात तो समझ आई। अगर मैं एक वैल्यू रख दूं पर्टिकुलर, कि जहाँ पर ये इस वैल्यू के बराबर है, वो वाली रो ले आओ, तो ये बात तो ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। ठीक है। और इस लोकेशन हम्म। पे ये रो नंबर आई, उसने बताया 26। मैं कह रहा हूँ मेरे को मैनुअली नहीं निकालनी, सीधे सीधे बॉलीवुड डॉलर मूवी, यानी बॉलीवुड डेटा फ्रेम पे जाओ, बॉलीवुड डेटा फ्रेम के मूवी वेक्टर से वो वाला इंडेक्स उठा लाओ जो 26 नंबर पे है, तो वो मूवी नेम ले आएगा। अब रही बात ये वैल्यू किस लॉजिक से आ रही है, ये वैल्यू इस लॉजिक से आ रही है कि मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड में टोटल कलेक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया होगा। तो सबसे पहले ओके। सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, इस ऑर्डर में आ गए होंगे। मेरे से हम्म। सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट वाला, सेकंड हाईएस्ट वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो कौन सी वैल्यू आई, वही आई जो मुझे चाहिए थी, सेकंड हाईएस्ट। अब मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू मेरे को मैनुअली कैलकुलेट नहीं करनी, मेरा कोड कर तो रहा है ये काम, ये वैल्यू कैलकुलेट करने का वो कोड ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, गॉट इट। अब आसान है, आसान क्या है। अब पूछो मुझसे टॉप सेकंड क्यों, अब पूछो ना मुझसे टॉप 10th, मुझे कुछ नहीं करना, ये लो टॉप 10th, अब की बार टॉप 10th आएगी। टॉप 10 पूछो, टॉप 5 पूछो, टॉप 20th पूछो, कुछ भी पूछो। फिलहाल 2 छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भेजना है ये। वेयर टू यूज अंडरस्कोर, हाँ बताता हूँ साक्षी, लिसन लिसन लिसन। ये अंडरस्कोर इट इज जस्ट वेरिएबल नेम। ये टॉप 2 मूवी तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए अच्छे से, इसीलिए अंडरस्कोर लगाए हैं। इट इज जस्ट वेरिएबल नेम, इसे कुछ भी लिखो तुम, टॉप 2 मूवी, टॉप माई मूवी, टॉप योर मूवी, सो ये तो जस्ट वेरिएबल नेम हुआ। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज एज गुड एज इक्वल टू साइन। ये क्या कहता है कि इधर राइट साइड में, इस एरो के राइट साइड में जो कुछ भी हो रहा है, वो कैलकुलेशन, इस एरो के राइट साइड में जो भी कैलकुलेशन हो रही है, इट गोज इनटू अ न्यू वेरिएबल which is on left hand side of this arrow. So this arrow is assignment. I am assigning a value to a variable. डॉलर इज फॉर, हाँ जी, किस लिए होता है डॉलर। मैंने कहा बॉलीवुड डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम कहाँ है बॉलीवुड, ये रहा।
अब मुझे इस बॉलीवुड डेटा फ्रेम के एक पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं एंड यहाँ पर मैं बताऊं कि रो नंबर इतना और कॉलम नंबर इतना। सपोज मेरे को जाना हो सेकंड कॉलम पे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। रादर देन दैट मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बॉलीवुड। अगर मैं डॉलर लगाता हूँ तो मेरे को ये नंबर नहीं देखना पड़ता कि मेरे को कौन से नंबर के कॉलम पे जाना है, क्योंकि 2 नंबर कॉलम, चलो मेरे को जैसे लीड कॉलम पे जाना था तो मैंने देख लिया जल्दी से कि हाँ ये सेकंड नंबर पे है। व्हाट इफ इट वाज ऑन 20th नंबर, तो क्या मैं काउंट करता हुआ थोड़ी जाऊंगा? तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट डॉलर साइन और मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा वहां पे जो भी मेरे को बोला होगा कॉल। दैट इज माई डॉलर। Sakshi, tell me honestly, have you gone through the sword exercises? स्वॉर्ड पे जो एक्सरसाइजेस मैंने बोला था आप लोगों को करने के लिए। You see how predictable you people are. I don't have to make second guess. तुम क्वेश्चन पूछते हो और मुझे समझ आता है कि क्या नहीं किया है तुमने। Sir, I have one question. Like a double equal to sign is used for comparison, right? Right. So, why we are storing like Bollywood? Why we are writing this code? Because this is for comparison. दिस इज कंपैरिजन। ये विच के अंदर जो लिखा है ना, दिस इज कंपैरिजन। आई एम कंपेयरिंग टोटल कलेक्शन विद सम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? यही जो सॉर्टेड ऑर्डर में सेकंड इंडेक्स पे है। तो ये वैल्यू, ये जितना कोड हाईलाइट किया है मैंने, ये तो कैलकुलेट करके देगा इस वैल्यू को, Okay. 100.45। and now I am comparing whether Bollywood total tea collection is exactly equal to 300.45। तो वो ये कंडीशन पूरी हुई। अब ये कंपैरिजन पूरा हुआ और जिस रो पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, विच फंक्शन उस रो का रो नंबर दे देता है। Okay. Okay. ठीक है। ठीक है, ये है सारी कहानी। Sakshi, keep doing those swirl exercises. They are fantastic exercises to keep you coding. मैं कोड भेजता रहूंगा, तुम रन करके देख लोगे और उन्हें दबा के रख लोगे एक फोल्डर में, है ना? एमार्टिकस के अंदर आर मॉड्यूल, वो वहीं बैठा रहेगा। ये एक्सरसाइजेस करते करते ही आने लगेंगे। Okay, for now. Next is, it says now let's find out movies done by Shah Rukh, Akshay and Amitabh separately. Okay, ये सिंपल है। I think ये okay, fine, thank you. You saved me from typing. Lokesh, I will send them over. I will send you जो इससे पहले रन किया था बैंक वाले डेटा सेट पे, और जो बाकी बेसिक्स वाला कोड था, आई विल सेंड यू ओवर इन सीक्वेंस। बाकी सॉल्व आई बिलीव इंस्टॉल हो गया होगा लोकप्रीत। ओके, हाँ जी, इट इज सिंपल एज दैट। हमसे क्या बोला था कि जो जो मूवीज शाहरुख, अक्षय और अमिताभ ने अलग अलग निकालनी है सबकी, तो एज सिंपल एज दैट हम कह रहे हैं बॉलीवुड डेटा सेट पे चले जाओ,
कौन सी रो नंबर निकाल के लाओ? जहां पर विच लीड एक्टर इज शाहरुख, कॉमा स्पेस, यानी एंटायर रो, पूरी एंटायर रो लेकर के आ जाओ. So again, this is kind of condition based subsetting. You are subsetting the data based on a condition. Condition is that lead actor must be Shahrukh only. The key here is कि शाहरुख बिल्कुल वैसा ही लिखा होना चाहिए जैसा डेटा सेट में लिखा है, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा. So this is for Shahrukh, we do, and if I see this Shahrukh data frame, so it shows there are 2 movies done by Shahrukh. All right. Similarly, Akshay and Amitabh, you can find it out. Question 5. What is the total collection of Shahrukh, Akshay and Amitabh movie? So total collection of Shahrukh's movies, total collection of Akshay's movies, total collection of Amitabh's movies. Sarita, I am not saying anything wrong with that because क्वेश्चन में उसने बोला है कि कौन कौन सी मूवीज हैं उनकी, तो इफ यू एक्सेस जस्ट मूवी नेम्स तो इवन दैट इज ओके, बट एट द सेम टाइम सरिता, कुड यू सेंड मी योर कोड कि शाहरुख का कलेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या कोड लिखा है? It would be coming with logics. Thank you. हाँ जी, शाहरुख का कलेक्शन कैसा कैलकुलेट करोगे? आसान है, कर सकते हैं, बुराई कुछ नहीं. ना, दिस आर मूवी नेम्स. मैं कह रहा हूँ कलेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या कोड लिखा है? इससे तो आपने मूवी नेम निकाला कि शाहरुख की मूवीज कौन कौन सी हैं. Okay, here it is. So guys, it could have been done like this also. कैसे किया है सरिता ने? वैसे ही जैसे अभी निकाला था तुमने डेटा ऊपर. वो कहती है कि बॉलीवुड लीड जहां पर शाहरुख हो, उस रो नंबर पे जितने भी रो नंबर आएंगे जहां जहां लीड एक्टर शाहरुख होंगे, उन रो नंबर्स पे क्या निकाल लो? बॉलीवुड का टोटल कलेक्शन, उनका कर दो टोटल सम. तो हो गया, सिंपल है. However, सरिता, अगर ये किया होता कि यहाँ पर तुमने बॉलीवुड, यहाँ पर नेम नहीं निकाला, तुमने ये डेटा सेट ही निकाल लिया, नॉट ओनली नेम बट द एंटायर डेटा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम? यहाँ पर थिंक अबाउट इट, यहाँ पर वही तो कर रहे हो, एक कंडीशन लगा करके एक डेटा ही तो निकाला है. यहाँ पर अलग से तुम्हें डेटा निकालने की जरूरत नहीं थी. यू कुड हैव डायरेक्टली गॉन टू सम ऑफ टोटल कलेक्शन इन दैट शाहरुख डेटा सेट जो ऊपर बनाया था अभी. ये जो नीचे डेटा यही तो बनाया है अभी, ये रहा. अब हम कह रहे हैं पूरे बॉलीवुड से मतलब नहीं है, इस डेटा सेट में जाएंगे और जो टोटल कलेक्शन है उसका टोटल देख लेंगे एंड गेम ओवर. तो नथिंग इज रॉन्ग अजमल, बोथ आर राइट. इट इज ऑल अबाउट ईज ऑफ कोडिंग एंड ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि किसी को समझाना पड़ रहा है तो कितने आराम से समझा पाते. ओके,
and similarly you can calculate other things. तो बाकी भी ठीक है. Question 6. Write commands to find out how many movies are in flop, average, hit and super hit category. हाँ जी, कैसे किया है ये? शाहरुख. अच्छा प्रशांत जी, this is not something you will do. This is just बताता हूँ. अगर मेरे पास ये कलेक्शन कुछ होते, सपोज दिखा रहा हूँ, इट इज जस्ट फॉर यू टू प्रिंट एंड सी. इफ दिस वाज 100, दिस वाज 200 एंड दिस वाज 300, तो ये तीन वैल्यू होंगी ना. तो दिस इज डूइंग नथिंग. मैं अगर कुछ वेरिएबल नेम लिख के प्रिंट कर देता हूँ, टाइप करके और रन कर दूं, तो प्रिंट हो जाता है ना. सेमी कॉलन इज माय इंडिकेटर टू आर कि दिस इज कोड, ये कोड यहाँ तक है और इसके बाद जो भी लिखा है इस लाइन में, दैट शुड बी रन एग्जीक्यूटेड इन अनदर कोड. तो इट इज जस्ट प्रिंटिंग दीज वैल्यूज. तो मैंने लिखा एक ही लाइन में है, सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन. अच्छा प्रेरित टेस्ट, ठीक है. अरे सूरदास हो चलाऊं मैं, नंबर बढ़ गया पक्का. खैर, हाँ यार, इस लॉकडाउन में वैसे ही लैपटॉप पे इतना बैठना पड़ता है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है ना. ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो होता ही कुछ नहीं. और some Bollywood lead Shahrukh, tea collection, Prashasti, all good as long as you are getting right answer. Nothing wrong in that. It is just about ease. जैसे टी कलेक्शन यू हैव पुट इन हेयर, तो नथिंग रॉन्ग, टी कलेक्शन ही टोटल हुआ होगा. बट डॉलर यूज करना थोड़ा सा इंट्यूटिव रहता है ज़्यादा. अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में आप देखोगे तो दे आर यूजिंग डॉलर टू इंडेक्स कॉलम. तो ओके फाइन. हाँ जी, क्या करना था इसमें? जिनसे नहीं हुआ, अरे क्यों ना हुआ. हाँ मैं यही तो देख रहा था, ये क्या लफद्दर मचा रखा है तुमने अपने कोड में. सैप्लाई समरी, एक तरीका इसका सबसे आसान जो हो सकता था, वो जो मतलब वो तो वैसे मिल जाता किसी को. क्या कह रहे थे हम थोड़ी देर पहले? जैसे यहाँ एंटर किया था, बॉलीवुड डॉलर लीड इज शाहरुख, तो बॉलीवुड डॉलर वर्डिक्ट इज समथिंग, से हिट. तो इससे क्या आ जाता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. और ट्रू फॉल्स का टोटल कर लूं तो पता चल जाएगा ना कितने ट्रूथ है. तो पता चल गया कि इस डॉलर यहाँ पर कितने हिट मूवीज थे. बट इससे क्या होगा, मेरे को ये कोड 4 बार लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हिट भी है, एवरेज है, फ्लॉप है और फिर कोई सुपर हिट भी है. तो मैं ये 4 बार कोड लिखूंगा. चलो 4 बार भी समझ आता है. अगर ये 40 कैटेगरी होती, फ्लॉप, एवरेज, हिट, सुपर हिट एंड देन देयर आर अदर कैटेगरीज लाइक हिट 1, हिट 2, हिट 3, तो फिर ये कोड 40 बार लिखूं. तो तरीका, सिंपल तरीका तो ये है, लेकिन गधा तरीका है. अगर कैटेगरी ज्यादा हुए तो मेहनत ज्यादा है. तो स्मार्ट तरीका क्या है,
एक बात बताओ, समरी तक तुम लोग पहुंचेगी, समरी में बता रहा है इट इज ऑफ लेंथ 61 एंड इट इज क्लास कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर की समरी इतनी ही बताता है। रिमेंबर, अगर हम समरी देखें किसी चीज की विच इज फैक्टर, तो क्या बताता है? विच इज फैक्टर डेटा टाइप। अगर कोई फैक्टर डेटा टाइप होती है उसकी समरी क्या दिखाती है? उसकी समरी दिखाती है फ्रीक्वेंसी, और वही तो क्वेश्चन था। यस और नो? अरे यही तो पूछा था क्वेश्चन ने, कितनी मूवी है किस कैटेगरी में, चल गई पता इन वन सिंगल लाइन ऑफ कोड। एज फैक्टर, फैक्टर इज डेटा टाइप अजमल। देखो, अगर मुझे ये पता है कि बॉलीवुड डॉलर वर्डिक्ट अगर फैक्टर होता तो, सपोज मुझे पता हो कि फैक्टर होता तो मेरे को ये फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन वो फैक्टर है नहीं, वो है कैरेक्टर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर दिस समरी फंक्शन ओनली, एज फैक्टर मैंने एक फंक्शन लगा दिया, आई एम सेइंग फॉर दिस समरी फंक्शन ओनली, डेटा में चेंज नहीं हो रहा, वो डेटा में अभी भी कैरेक्टर ही रहेगा। So I am saying for this summary function only, treat this Bollywood verdict as factor, कि अगर इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया होता तो इसकी समरी कैसे दिखाते आप मिस्टर आर स्टूडियो? एज फैक्टर, फैक्टर एक डेटा टाइप है और एज फैक्टर फंक्शन उसको एज फैक्टर, फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, किसको? जो भी उसके अंदर लिखा होता है। लाइक आई हैव अ वेक्टर v and it is say there is a vector v। अगर मैं इस वेक्टर v की समरी देखूं, so it is showing me several numbers because numeric vector है। बट अगर मैं इस वेक्टर v को कन्वर्ट कर दूं, तो एज फैक्टर इज डूइंग नथिंग बट कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ न्यूमेरिक वेक्टर। अभी मैं v की क्लास चेक करूं तो इट इज ऑफ क्लास न्यूमेरिक। अब मैंने क्या बोला, न्यूमेरिक नहीं चाहिए, फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो फैक्टर से आपको समझ आता है कि दिस इज अ कैटेगोरिकल कॉलम। पढ़े थे ना, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल बात कोई थी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। अब इसकी क्लास चेक करता हूं एंड यू सी इट इज नो मोर न्यूमेरिक, नाउ इट इज अ कैटेगोरिकल कॉलम। फैक्टर डेटा टाइप में जाते ही आर को समझ आता है कि ये तो कैटेगोरिकल कॉलम है, और जैसे ही ये कैटेगोरिकल कॉलम हो जाता है तो उसकी समरी देखो, उसकी समरी फिर वो तमीज से दिखाने लगता है। इट इज शोइंग यू दैट यू हैव 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज एंड व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी इन दिस वे। ओके, तो यहाँ तक काम हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द कमांड टू फाइंड maximum values of, okay, there are different kinds of collections and it is asking you to fetch maximum collections, कि इस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाए, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाए, और जिस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाए। एंड यू शुड नॉट टाइप डिफरेंट कमांड्स फॉर दिस, यू शुड टाइप अ कमांड जो एक बार में रिजल्ट दे दे। तो एक तरीका जो अजमल ने अभी ड्रॉप किया है,
कि इससे प्रिंट हो जाएगा या अच्छा फाइनल रिजल्ट में सेव हो जाएगा। अजमल ये तो मुझे लग नहीं रहा है, तो कहानी से डिफरेंट हो रही है अगर दिखाता चलो। अजमल कहते हैं रो नंबर ले आओ कौन सी, जहाँ जीरो कलेक्शन मैक्सिमम था, कॉमा कौन से जहाँ ये कलेक्शन ये कलेक्शन ये कलेक्शन जहाँ जो भी थी वो वाला रो नंबर ले आओ, और ये सारी रो नंबर्स पे से बॉलीवुड डेटा सेट को एक्सेस कर लो। उसे बोला फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट देखें तो वो बना क्या, वो बना कुछ ऐसा। क्या देखूं इसमें, सरिता के तरीके से चलो फिर भी कुछ समझ आ रहा है। सरिता ने क्या किया कि कंबाइन करके एक वेक्टर बना दो, किसका वेक्टर बना दो, मैक्स ऑफ बॉलीवुड जीरो कलेक्शन, मैक्स ऑफ दैट कलेक्शन, मैक्स ऑफ दैट कलेक्शन और मैक्स ऑफ सारे कलेक्शन, और इनको हम प्रिंट कर दें तो दीज आर कमिंग आउट मैक्सिमम ऑफ जो जो कलेक्शन बोले गए थे। हाँ हेयर इट कम्स, हेयर इट कम्स। Here it comes from Prerit, which is by far the best possible way to run it. प्रेरित क्या कहता है, रिमेंबर एस अप्लाई, एस अप्लाई यानी सब पे अप्लाई, मतलब तुम पता नहीं कैसे याद रखो, मैं तो ऐसे याद रखता था इसको। एस अप्लाई होता है सब पे अप्लाई। मैं बताऊंगा एक डेटा सेट के कुछ कॉलम्स और फिर बताऊंगा एक फंक्शन, और एस अप्लाई क्या करेगा, इस फंक्शन को पकड़ेगा और इस फंक्शन को पकड़ के इस डेटा सेट के जितने कॉलम मैंने बताए सब पे रन कर देगा। रिमेंबर देखा था ये तो। कॉलम नंबर देखते हैं, कॉलम नंबर होंगे 4 5 6 7। बहुत ही बढ़िया, ये 4 5 6 7 को थोड़ा बेटर लिख सकते हैं, देखो ऐसे, नथिंग रॉन्ग बट ठीक है, वो भी ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अनदर इनसाइट। 4 5 6 एंड 7 यानी 4 से लेकर 7 तक चाहिए थे ना, तो उसी बात को ऐसे लिख रहा हूँ, सीक्वेंस कॉलम। मैक्स फंक्शन लगा तो कौन सा फंक्शन लगाना था, मैक्स एन डॉट आर एम, बिकॉज कहीं ना कहीं एन होगा, तो एन डॉट आर एम ड्रॉ कर दिया। बढ़िया, तीन तरीके, रिजल्ट तीनों से ही आ रहा है। थिंक अबाउट इट, कौन सा इंट्यूटिव लगता है, किसको कोड करना सबसे आसान है। गोइंग फाइन।
सम कैसे हुआ? इति सम किया ही कहाँ है? अरे सम के लिए बोला कहाँ है किसी ने? सर ये मैक्सिमम वैल्यू इससे पुट अप हुई है। हाँ तो क्वेश्चन ने वही पूछा था ना, क्वेश्चन ने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लाओ। वो कलेक्शन में किसी मूवी ने तो मैक्सिमम कलेक्शन किया होगा ना ओपनिंग डे पे, वो वैल्यू ले आओ। सर ये जो मैक्स फंक्शन है हम ये इससे पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट से पहले भी मेंशन कर सकते हैं, पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट से पहले? यानी कि बॉलीवुड के पास। ना ना ना, अंडरस्टैंड द सिंटैक्स नो। एस अप्लाई का सिंटैक्स क्या होता है? इफ आई टाइप एस अप्लाई, इसका सिंटैक्स क्या होता है? हियर आई विल गिव डेटा सेट एंड इट्स कॉलम्स, कॉमा आफ्टर कॉमा आई विल गिव द फंक्शन। कि कौन सा फंक्शन? दो पार्ट में होगा। तो दिस इज डेटा फ्रेम, दिस इज द फंक्शन। और एस अप्लाई, इनके ऊपर एस अप्लाई होगा तो एस अप्लाई क्या करता है? इस फंक्शन को उठा के इस डेटा सेट के जितने कॉलम्स हमने मेंशन किए हैं उन कॉलम्स पे अप्लाई कर देगा उस फंक्शन को। Yes, guys, am I audible now? I think I dropped audio for a few seconds. Okay, fine. So, Iti, I hope clear? No sir, not clear because your voice is not coming. Okay, okay. मैं अब क्या बता रहा था? Just एस अप्लाई का सिंटेक्स क्या होता है? एस अप्लाई पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर एस अप्लाई को मेरे को दो आर्गुमेंट देने हैं। आई हैव टू गिव टू आर्गुमेंट। Okay. वन इज मैं बताऊंगा कि कौन से डेटा पे अप्लाई करना है, कॉमा कॉमा लगा के मैं बताऊंगा क्या अप्लाई करना है। तो ये सिंटेक्स ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें मतलब मेरी मर्जी नहीं है कि मैक्स में कहीं भी लगा सर दूंगा। हाँ again. पार्डन? वॉइस इज इट देयर गाइस? वॉइस स्टिल नॉट कमिंग? Am I audible now? Yes, you are now. Okay, okay, fine. So, well, did I miss anything? I was saying that सप्लाई के सिंटेक्स में दो पार्ट होते हैं, वन इज द डेटा फ्रेम, अनदर वन इज द फंक्शन, और ये इसी तरह से ऑर्डर्ड है। आई कैन नॉट कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग एनीवेयर, कि कहीं पे कुछ भी लिखना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। Okay, okay. इस ऑर्डर में होंगे तो उसको समझ आता है कि ये वाला डेटा है और ये वाला फंक्शन है। Okay, all set. Next question is, next question says write a command command. Okay, write a command to find the name of the movies. Sir, voice is again breaking.
अच्छा, okay, let's do one thing. Guys, is it any better? Hope it works this time. Oh, chalo, thankfully. Good. Well, fine question. It says write a command to find the names of the movies which have these maximum collections जो आपने अभी कैलकुलेट किए हैं. ये जो आपने अभी मैक्सिमम कैलकुलेशंस कलेक्ट किए हैं, ये जो निकाले थे अभी, कहता है ये हैं किस किस मूवी के. तो थिंक अबाउट इट. एक ही मूवी के तो होंगे. यस और नो. कलेक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, पर मूवी तो वही होगी. क्या जी? आई थिंक अभी तो ऑडियो क्लियर है. हाउ कम टू मूवीज? हाउ कम टू मूवीज आर कमिंग? मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, ये कलेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट होंगे तो सेम ही मूवी के. अरे जिसका ये मैक्स है उसका ये भी मैक्स होगा, उसका ये भी मैक्स होगा. ओके. हाँ जी. तो एक तरह से थंब रूल से नहीं जाया जा सकता. दिस कैन बी अ जनरल कन्वेंशन कि हाँ, जिस मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन ज़्यादा है तो शायद वीकेंड पे भी वही ज़्यादा करेगी, फर्स्ट वीक भी उसी का ज़्यादा होगा और टोटल भी ज़्यादा उसी का. तो दिस कैन बी जनरल कन्वेंशन, बट वी कैन नॉट गो बाय जनरल कन्वेंशन. ऑन एन ऑड डे इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, तो वी कैन नॉट एज्यूम इट लाइक दैट. नहीं तो क्या होता, एक मूवी का विच मैक्स निकालते एक कलेक्शन का और मूवी का नाम दिखाते. अभी मेरे को चारों का मैं विच मैक्स देखना चाहिए और तब पता चलेगा कि मूवी कौन सी थी. कैसे किया है, अगर किसी ने किया है तो? ओके, प्रेरित. Is it so? Audio dropped again? I don't think so.